Okay. So now come to the nature of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है, जैसे हम अकाउंटिंग में देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर्ट साइंस, in similar way cost accounting is a branch of knowledge which is a science, which is arts, and which is also a profession. Why? Because कुछ इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज साइंस. इसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यू कैन डिसाइड द थिंग्स which should be followed, that is why it is arts. And it is a branch of knowledge because इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है based on which you make your decision for the future policies. So what is the role of cost accounting? The role of cost accounting is to ascertain the cost, is to cost control, to determine the selling price, and frequently preparation of account and other reports to provide the basis for operating policy. तो जो कोई बिजनेस होता है जिसको आप डिसाइड करते हो कि हमारे बिजनेस में कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, बेसिकली ये वो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी डिसीजंस हैं जिस डिसीजन के बेसिस पे आपके लॉन्ग टर्म में चीजें अफेक्ट होती हैं. अगर आपने अपनी कॉस्ट ठीक से कैलकुलेट नहीं की और आपने सेलिंग प्राइस गलत डिसाइड कर लिया, तो इट विल कॉस्ट द कंपनी इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है एक बार लॉन्च कर दिया तो इमीडिएटली उसके प्राइस तो डबल नहीं कर सकते ना. तो दीज आर द थिंग्स. So these are the things which affect the business in long run, and that is why you need to have a proper accountability for these things. ठीक है? So we can define the objectives of cost accounting on primary objectives and secondary objectives. Primary objective होता है cost ascertainment, cost reduction and control, and decision making. जबकि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इन सब के कॉस्ट जब आपने डिफाइन कर रखी है, जब आपने बजट बना रखा है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, क्या आप उस बजट के अंदर ही थे या आप उस बजट के बाहर गए थे. आप अपना बजट बना सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली बना सकते हो, बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन विल अल्टीमेटली बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स you will have some additional information as well. ठीक है? Then you can do the inventory management and you can also do the tax planning. So these are the advantages of the cost accounting. Cost accounting helps in ascertainment of the cost. Cost accounting help करता है आपकी cost decide करने में. It helps in controlling the cost. It helps in decision making. Decision making से क्या मतलब होता है? Decision making से for example make and buy decision. Have you heard of make and buy decision earlier? किसी ने सुना है पहले? You can write in the chat box. See, there is nothing important and nothing less important. What you have to do is कि आप जो है एक बार पास्ट ईयर का 10 ईयर फॉलो कर सकते हैं, उनका ट्रेंड क्या है. यू विल फाइंड कि हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आता ही है. एक एक किसी के साथ ऑप्शन में आ जाता है ए और बी पार्ट में, दूसरा फिर ऑप्शन में आ जाएगा. तो यू कैन नॉट स्किप एवरीथिंग एल्स. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू विल certainly have a one cost sheet to make in the practical portion, one reconciliation statement which is from your unit 5, one process account, one contract account, and one from your material part, either EOQ or LIFO FIFO, and one from your one question from your overheads. तो ये सारी ही यूनिट कवर करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कोई अगर यूनिट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, देन यू कैन थिंक कि अच्छा ठीक है, इस यूनिट के बदले में आप बाकी सारी इस यूनिट को छोड़ के बाकी सारी यूनिट तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें.
and this is a practical subject. It will consist of 60 to 40% ratio, कि 60% आपका जो है practical portion आएगा, 40% theory आएगा. You cannot skip theory at all and you cannot skip your practical portion at all. You can come to the department SOL and you can have queries, and for your small queries I can write my email ID in the chat box. You can note down it. I hope it is clear till now. Do you have any doubt? Okay, let's go then. So, we were discussing what is make and buy decision. Have you heard of make and buy decision? कि कंपनी में make and buy decision क्या होता है? किसी को आइडिया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो. What is make and buy decision? ओके, तो देखो होता ये है कि आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी में आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है. यू हैव टू ऑप्शंस कि आप जो है पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल, पूरा प्रोडक्ट खुद ही प्रोड्यूस करें, या फिर कुछ पार्ट्स कलेक्ट कर लें कहीं और से, बाहर से, देन उसको असेंबल करें और देन सेल कर दें. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्शन करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जनरली हैव टू ऑप्शंस कि वो सारे ही एलिमेंट्स जो है प्रोड्यूस करें, या फिर कुछ कुछ कलेक्ट करके और कुछ प्रोडक्शन करके देन सेल करते हैं. या फिर कुछ ऐसा होता है, कोई 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 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक लेयर ऑफ प्रोडक्शन चलती है, देन यू यूज दोज इनपुट एज अ यू यूज दोज आउटपुट एज अ इनपुट, कि आप जो है अपने प्रोडक्शन में उसे एज अ इनपुट यूज करते हो और तब प्रोडक्शन करते हो. तो कंपनी हैज अ चॉइस. कंपनी के पास चॉइस क्या होती है कि उस जो एलिमेंट यूज कर रही है नेक्स्ट स्टेप में, या तो उसको खुद प्रोड्यूस करे या फिर उसको बाहर से परचेज करे. उसी को कहते हैं मेक और बाय डिसीजन. या खुद बनाओ, खुद बना रहे हो, या फिर आप बाय कर रहे हो बाहर से. अब उसमें करती क्या है कंपनी? ये करती है, कंपनी देखती है कि उसको बेनिफिट किस में हो रहा है. क्या उसको खुद प्रोड्यूस करने में बेनिफिट हो रहा है, या फिर उसको बाय करने में बेनिफिट हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू बाय दोस थिंग्स, you eliminate certain kind of cost. एंड ये अगर यही दोनों प्रोसेस आपको करने हैं, ये दोनों प्रोसेस कंपलसरी है, तो कंपनी इसमें एफिशिएंसी चाहती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. दैट इज व्हाई यू कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेक और बाय डिसीजन. इट हेल्प्स इन रिटेन और रिप्लेस डिसीजन. तो रिटेन और रिप्लेस डिसीजन किससे रिलेटेड है? जैसे कि आपके पास कोई मशीन है, तो वो मशीन, आप उस मशीन को रिटेन करना चाहते हैं या फिर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं. वो बहुत पुरानी हो गई है, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी है नहीं, उससे आउटपुट जो है हमारा मटेरियल ही खराब हो जाता है, वेस्टेज बहुत चला जाता है. ठीक है, तो यू वांट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू रिटेन दोज एसेट्स फॉर सम पीरियड, फॉर सम फ्यूचर पीरियड, और यू वांट टू रिप्लेस इट.
ठीक है। तो रिटेन और रिप्लेस में जब आप एसेट की बात करते हो कि आपको एसेट को रिप्लेस करना है या उसको रिटेन करना है, तब आपकी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन फाइंड आउट कि वो जो मशीन है वो आपको अभी कितनी प्रोडक्शन करके दे रहा है, अभी कितनी यूनिट्स बना पा रहा है। आप जो उससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके कितनी यूनिट्स बन पाएंगी, तो आपको प्रॉफिट किस केस में हो रहा है, ठीक है। देन कंटिन्यू और शॉर्ट डिसीजन, कि आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या शट डाउन कर देना चाहिए। देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑर्डर्स, तो बेसिकली क्या होता है दैट कंपनीज रिसीव प्रपोजल कि उनको 1000 यूनिट्स बनानी है या फिर 10,000 यूनिट्स का एक प्रपोजल आया है, एक प्रोजेक्ट आया है, तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसमें हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सम प्राइस डिसाइडेड, प्राइस एज अ कोटेड। तो वो सारे डिसीजंस में आपका जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है, देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट हेल्प यू आउट। देन कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस फिक्स करने में तो हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट जब आप डिसाइड कर लेते हो तभी आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो, कि अगर मेरी 10 रुपए की कॉस्ट है और इसमें मैं 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूँ, तो देयर शुड बी 12 रुपीज एज सेलिंग प्राइस। देन इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल में आपकी हेल्प करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में किस वे में? इन्वेंट्री कंट्रोल में इन डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री खराब कहाँ हो रहा है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में खराब हो रहा है, देन यू हैव टू डिफाइन कि अच्छा आपको लेबर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, या फिर आपका स्टोर में खराब हो रहा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या आप एक्सेस में अपना जो मटेरियल है वो आप स्टोर में इकट्ठा करते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि पुरानी जो मटेरियल रखा हुआ है वो पुराना खराब होता जा रहा है, बिकॉज ये हैव कलेक्टेड सो मच कि आपका जो पुराना नीचे दबा हुआ मटेरियल है स्टोर में, गोडाउन में, जो नीचे की लेयर्स में रखा हुआ है, वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा, वो रखे रखे खराब हो रहा है। तो you will be able to know that what should be the inventory level, what should be the minimum level of inventory, maximum level of inventory, at what point of time you should reorder your inventory, कितना लीड टाइम लगता है, किस पॉइंट पे आपको रीऑर्डर कर प्लेसमेंट कर देनी चाहिए थी। तो ये सब आपको इसमें करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हो, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन इन्वेंटरी कंट्रोल। इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्वियसली ये तो इसका ऑब्जेक्टिव ही है, तभी कॉस्ट रिडक्शन होता है। इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, हम तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाता है लेबर्स की, आपकी खुद की, that you are able to define what should be the cost, what is your budgeted cost, what is your standard cost and what is your actual cost, उसमें डिफरेंस कितना है। then it helps in preparation of budget, it helps in identifying unprofitable activity, कि कौन सी एक्टिविटी जो है अनप्रॉफिटेबल है, we should remove those activities, eliminate those elements in the production process. It helps in identifying the material losses, कि आपका material losses कहाँ होता जा रहा है unnecessary. It helps in identifying the ideal time, ideal capacity. Ideal time or ideal capacity is related to something, your labor. Then it also helps in improving the productivity of the business. It helps in cost comparison. So do you have any doubt till now? You can ask. You can ask in the chat box. Okay. Then comes limitation of cost accounting. हर एक चीज की अगर कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग खुद में ही एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट करने का मतलब है आप डबल अकाउंटिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट सबको बनाने ही बनाने हैं इंड के लिए, वो तो वो तो रिक्वायरमेंट ही है, वो तो मैंडेटरी है बनाना। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग यू हैव अ चॉइस एंड दैट इज व्हाई कंपनी थिंक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस टू बी फॉलो। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, इसमें आपको पहले मतलब अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, फिर उसको सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड द सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट एज सिंपल एज फाइनेंशियल अकाउंट, एंड दैट इज व्हाई क्योंकि कॉम्प्लेक्स है
ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स. देन इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक्स, कि हर एक जगह सेम कॉस्टिंग मेथड नहीं लगता. फॉर एग्जांपल इन शुगर इंडस्ट्री you cannot make cost sheet to define your cost, you have to make process account. जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप प्रोसेस अकाउंट या कॉस्ट शीट नहीं बनाते, उसमें आप बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो सेम कॉस्टिंग मेथड जो है सब इंडस्ट्री में फॉलो नहीं होता. ठीक है. देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट, बिकॉज स्मॉल स्केल यूनिट भी अगर अलग से एक अकाउंटेंट बिठाने लग गए कॉस्ट शीट के लिए या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, सो दैट विल कॉज देम मोर कॉस्ट. ठीक है. देन लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज you do not have only direct cost कि direct labor, direct material, direct expenses कितने लगे, you have something as overhead, and overhead को allocate किस तरीके से करना है, and there you have a lot of inaccuracy कि आप किसी भी basis पे allocate कर रहे हैं, and you should have used something else as a basis. Then it lacks social accounting. तो social accounting obviously it will lack. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सोशल अकाउंटिंग तो करता नहीं है, तो सोशल अकाउंटिंग इज अ न्यू टर्म which is in the market to account for those things, for example your CSR activities and everything. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं कुछ. तो कॉस्ट यूनिट क्या होती है? कॉस्ट यूनिट होती है आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि आपका मेन यूनिट होती है. जैसे मैंने कहा ना एग्जांपल में कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख है और आपने 10,000 यूनिट्स बनाई, जबकि पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. पर अब मैं बोल रही हूँ 10,000 यूनिट की जगह आपने 10,000 टन्स बनाए, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो टन्स में बनता है. तो जब वो टन्स में बनाया तो आप पर टन की कॉस्ट निकालेंगे. तो यूनिट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और यूनिट ऑफ सर्विस. तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें टन्स बनता है, क्लोथ है तो उसमें मीटर के हिसाब से आप निकालते हो. ठीक है. पेपर इंडस्ट्री है तो उसमें रील के अकॉर्डिंग बनाते हो, रील के अकॉर्डिंग. पेट्रोल है तो बैरल के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट निकालते हो. देन सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट कैसे निकलती है? सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट निकलती है बेस्ड ऑन पैसेंजर पर माइल, कि आपका जो यूनिट है वो पैसेंजर माइल्स होता है. जब आप सिनेमा हॉल्स में जाते हो तो सिनेमा हॉल में जो सिनेमा की सीट होती है, सीट के अकॉर्डिंग कॉस्ट डिफाइन होती है. अगर आप कंसल्टेंसी में हो तो कंसल्टिंग आवर्स के बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट डिफाइन करते हो. तो दीज आर द यूनिट्स which you define your cost and on which you will have your selling price. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बस में टूर के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप पे ये होता है ना पर पैसेंजर दिस विल बी द कॉस्ट, बट वहाँ पे माइल्स भी ऐड कर दी जाती है व्हेन यू हैव डिफरेंट माइल्स टू बी ट्रैवल्ड. जब आपका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग वेरी करता है, तो आप पैसेंजर पर माइल्स के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. देन कम्स कॉस्ट सेंटर. So what is cost center? Cost center can be the location, can be the person, item of equipment for which the cost may be ascertained. For example, your cost center can be personal cost center, a person or group of person, impersonal cost center, location or equipment, production cost center जहाँ पे production actual में हो रहा है, और service cost center. Then comes responsibility centers. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है आप डिफाइन कर देते हो कि ये आपका कॉस्ट सेंटर है, ये रिवेन्यू सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर है, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं.
based on the activities which they do. Then you define cost object. It can be a product, service, process, or activity. Then comes costing method. तो कॉस्टिंग मेथड क्या होते हैं? ये वो मेथड है जो कि फॉलो किए जाते हैं अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग तरीके से। जैसे कि जॉब कॉस्टिंग का मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग इसलिए अप्लाई की जाती है because you have some order, you have some job to be done based on specific requirement. प्रिंटिंग में आप जो है पहले से प्रिंट करके नहीं रख लेते कि अच्छा ठीक है पहले से प्रिंट करके रख लिया है, स्टॉक में रख लिया है और फिर अब उसको सेल करेंगे। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में you do your work based on the demand, based on the customization. You do not have your standard products, and that is why you have to follow job costing कि जॉब जो आई है उसको करने में आपको कितनी कॉस्ट लगती है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूटिलाइज होता है, ठीक है। आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट देते हो, या तो आप घर बना के दे रहे हो या कोई बिल्डिंग बना के दे रहे हो, तो वो कस्टमाइज बना के दे रहे हो, वो कोई स्टैंडर्ड तो बना के नहीं दे रहे। बट डिफरेंस है दैट job costing is utilized in the small things, not and basically contract costing is a large job. A contract is a large job and a job is a small contract. क्योंकि दोनों में ही आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो, आप जॉब तो कंप्लीट कर रहे हो। डिफर करता है स्केल का। जॉब कॉस्टिंग में अमाउंट कम इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो आपका कंस्ट्रक्शन में जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इट कैन टेक मोर देन 1 year ऑल्सो। बट इन जॉब कॉस्टिंग, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, रिपेयर शॉप्स, इंटीरियर डेकोरेशन, दे वोंट टेक मोर देन 1 year। ओके, देन कम्स बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है? यू ट्रीट कि अच्छा हर एक जो यूनिट है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बैचेस में कर रहे हैं। एंड बिकॉज बैचेस में क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको जो है प्रोडक्ट वो सिमिलर प्रोडक्ट बनाना है, सेम आर्टिकल बनाना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो टायर इंडस्ट्री, ट्यूब इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे आप जो है बैचेस में सामान बनाते हो, एंड दैट इज व्हाई यू यूज बैच कॉस्टिंग देयर। For each batch you decide your total cost and divide those number of units. Then comes process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूटिलाइज होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग यूटिलाइज होता है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पेपर इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल में क्या होता है कि जब आपका जो इनपुट है वो एक प्रोसेस से होके गुजरता है, जबकि क्लोथिंग मटेरियल होता है वो एक प्रोसेस से होके गुजरने के बाद उसके बाद उस पर दोबारा से दूसरे प्रोसेस में जाता है। इन सिमिलर वे शुगर इंडस्ट्री में आपका जो शुगर है, जो व्हाइट शुगर है जो आप यूज करते हो, वो एकदम से नहीं बन जाता। that goes through different processes and then you have that output. You have doubt till now? You can ask in the chat box. Okay, so then comes unit, single और output। तो यूनिट, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होती है? ये कहाँ अप्लाई होती है? ये अप्लाई होती है जहां पे आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना होता है और ये जो है आप आउटपुट के फॉर्म में बनता है। फॉर एग्जांपल इन ब्रिक्स इंडस्ट्री, इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता है
कि आप जो ब्रिक्स बना रहे हो वो ब्रिक जो है आउटपुट सेम ही है, ठीक है। तो अब आउटपुट के फॉर्म में उसको उसमें कोई कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक प्रोसेस से होके गुजरेगा वही इनपुट दूसरे प्रोसेस में यूटिलाइज होगा। तो इसीलिए उसमें यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग यूटिलाइज, ठीक है। देयर यू कैन डिफाइन कॉस्ट ऑफ योर ईच सिंगल प्रोडक्ट तो यू मेक इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट फर्स्ट, कि पहले आप पूरा आउटपुट का लॉट बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक ईंट निकालेंगे हर एक प्रोसेस से, ठीक है। देन कम्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस। तो होता क्या है कि आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, या आपका प्रोडक्ट टू बी डिफाइन कि आपके पास एक यूनिट टेंजिबल यूनिट, बट सर्विस कॉस्टिंग में यू डू नॉट हैव अ टेंजिबल यूनिट। और टेंजिबल यूनिट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हो, ये डिफाइन सम यूनिट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवेज में, एयरलाइंस में, होटल में, हॉस्पिटल में, इलेक्ट्रिसिटी में, सिनेमा हॉल्स में यूनिट्स क्रिएट की जाती है। एयरलाइंस में कैसे होती है, वो पर पैसेंजर डिफाइन करते हैं, तो जितना भी ट्रैवलिंग का डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो जब आप कॉस्ट वेरी करती है तो वो कॉस्ट सेम नहीं होती फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और पैसेंजर दोनों के बेसिस पे अपनी कॉस्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन कम्स मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग। मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग का मतलब ये हुआ दैट यू कैन यूज टू टाइप ऑफ मेथड्स जो कि ऊपर मेंशन की गई है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, टू डिफाइन की लास्ट में हमारी कॉस्ट कितनी है। देन कम्स कॉस्ट टेक्निक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। बेसिकली मल्टीपल कॉस्टिंग में कुछ नहीं होता, मल्टीपल कॉस्टिंग में यू कैन यूज टू और मोर मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट, कि सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप दो टाइप की कॉस्टिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई इंडस्ट्री में हो जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसका एक पार्ट बनाने के लिए तो आउटपुट कॉस्टिंग यूज कर सकते हो, और जब आप उसको फाइनली बना लेते हो क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन आ जाती है, जब जब आपके पास कोई ऑर्डर आ गया है जिसमें कस्टमाइज्ड बाईसाइकिल देनी, तो आप उसको जॉब कॉस्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ पार्ट्स बना के। देन कम्स मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। इसमें भी क्या होता है, आप जो है दोनों तरीके यूज कर सकते हो, कि आपने मेनली जो है पहले आउटपुट कॉस्टिंग यूज की, आपने प्रोडक्ट्स जो है बैचेस में बनाए, और या फिर प्रोडक्ट जो है आउटपुट के टर्म में बनाए, मतलब आपने एक लॉट बना के रख लिया, फिर आप उसको बैच कॉस्टिंग में अप्लाई कर रहे हो कि आप बैचेस में फिर स्कूटर्स निकाल रहे हो। देन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। The techniques of costing are not the alternative to method of costing. These are the different ways of analyzing and presenting cost for the purpose of controlling cost. जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब इनमें इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप बात करते हो कि आप कॉस्ट क्या रखोगे, आप प्री डिटरमाइन कॉस्ट रखोगे हर एक मटेरियल की, लेबर की, और उसके बाद जब सारी चीजें हो जाएगी तब आप खुद से कंपेयर करोगे और जानना चाहोगे कि डिफरेंस क्या है और वो डिफरेंस के रीजन क्या है और एक्शंस लोगे। जबकि पुराने वाले में ये मेथड थे, ये कॉस्टिंग मेथड में कहीं पे भी आपने ये नहीं बोला कि ऐसे डेविएशन जानना है या आपको डिफरेंस जानना है कि बजटेड कितना था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप ये कहते हो कि हमारी हर बार की कॉस्ट कितनी आती है, बेस्ड ऑन द पार्ट डेटा आप
कॉस्ट डिफाइन कर लेते हो फॉर योर मटेरियल, फॉर योर लेबर एंड फॉर योर एक्सपेंसेस, एंड देन यू पुट कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, तब आप उसको कंपेयर करते हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यू डिफाइन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, आप उसमें एक्चुअल कॉस्ट को नहीं लेते, बाद में एक्चुअल से कंपेयर जरूर करते। फिर आता है बजटरी कॉस्ट। बजटरी कॉस्टिंग क्या होता है बजटरी कंट्रोल में? दैट यू मेक अ बजट फॉर द होल बिजनेस प्रोसेस एंड देन यू कंपेयर कि बजट में कितना डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हर एक एलिमेंट क्या कॉस्ट आप देखते हो कि हर एक एलिमेंट में कॉस्टिंग कितनी डिफरेंट। बजटरी में यू डिफाइन फॉर होल बिजनेस प्रोसेस फॉर होल टाइम पीरियड। देन कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि आपके जो कॉस्ट है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एंड बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट नेचर, आप जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर जो एक बार इनकर हो गया वो तो सेम ही रहेगा ना, वो डिफर नहीं करेगा। जबकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है नंबर ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, कितनी कम कर रहे हैं। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में फोकस किया जाता है दैट यू शुड बी एबल टू रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट एंड यू शुड बी काउंटिंग कि अगर कोई एडिशनल प्रोजेक्ट आया है तो एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देन कम्स टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में क्या कहते हैं कि जो जितनी भी टोटल कॉस्ट है उन सबको प्रोडक्ट में चार्ज करो। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है दैट यू शुड ओनली चार्ज द वेरिएबल कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करना चाहिए। जबकि टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि आपको टोटल कॉस्ट ऐड कर देनी चाहिए, बेशक से वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या फिर बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट आया है उसके अंदर प्रोडक्ट बनाने हैं तो सारी की सारी कॉस्ट ऐड कर दो, सारे ही चार्ज कर। Then comes uniform costing. Uniform costing is nothing but practice of using the same costing principle and practice by a number of firms in same use. It helps in inter-firm comparison, fixation of price, cost reduction, and in seeking tax relief and production for the government. कि आप सेम टाइप की कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि आप अपने दूसरे फॉर्म के साथ कंपैरिजन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, प्राइस फिक्स कर पाओ, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प मिलेगी। तो those are the things which you do in uniform costing. Then comes costing system. तो कॉस्टिंग सिस्टम आपके ये डेटा बेसिस के बेसिस पे हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब पास्ट डेटा यूटिलाइज करते हैं। एस्टिमेटेड डेटा मतलब दैट यू कैलकुलेट सम फ्यूचर डेटा बेसिस, कि आपकी जो है आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है 1000 यूनिट्स का प्रोजेक्ट आया है, तो उस 1000 यूनिट्स में आपका मटेरियल कितना लगेगा, आपका लेबर कितना लगेगा, देन यू कैलकुलेट कैसे एस्टिमेटेड बजट कितना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में यू कैन हैव हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, इसके बेसिस पे आप पास्ट डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट सिस्टम आप फ्यूचर डेटा के लिए कैलकुलेट करते हो। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कि आप स्टैंडर्ड बना लेते हो कि एक्चुअल कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने ये प्री डिफाइन कर लिया कि कॉस्ट कितनी ही होगी और उसके बेसिस पे आपने कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर। Then comes classification of cost. Classification of cost ना देखो बहुत तरीके से हो सकती है। जो मेजरली होती है, जो कॉस्ट शीट में होती है, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल कोई मिल्टन की बोतल है तो हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टील की बोतल अगर यूज कर रहे हैं तो स्टील की बोतल में जो स्टील है वो मटेरियल है, उसको बनाने के लिए लेबर लगा, कुछ एक्सपेंसेस भी लगे होंगे और कुछ लगेंगे होंगे ओवरहेड। तो जब हम एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे ये चार कैटेगरी होगा, ठीक है।
मेनली तो ये तीन कैटेगरी होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और जब इन्हीं का इनडायरेक्ट वर्जन ऐड हो जाता है तो उसी को कहते हैं हम ओवरहेड। ठीक है। देन वी डिफाइन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैसे कि प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कितनी थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी थी, फाइनेंसिंग की कॉस्ट कितनी थी, एंड R&D की कॉस्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमने फंक्शन के बेसिस पे किया है, ना कि एलिमेंट के बेसिस। तो ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना फंक्शन के बेसिस पे, एलिमेंट के बेसिस पे, यहाँ पे बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे आप जो है डिफाइन करते हो, डिफरेंशिएट करते हो या फिर क्लासिफाई करते हो कॉस्ट को, जो कि आप पहले भी कर चुके हो इन योर 12th क्लास और इन योर अदर सब्जेक्ट। तो क्या कोई बता सकता है कि कॉस्ट को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स में तो बहुत बात किया है तुम लोगों ने, कोई बताएगा? अच्छा, किसी का डाउट है बजट कॉस्टिंग? देखो, बजट कॉस्टिंग कुछ नहीं होता। बजट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप पहले से प्री डिफाइंड बजट बना के करते हो कि इतना बजट है आपका, और उस बजट के अंदर ही फिर वेरिएशन देखते हो कि अच्छा बजट बजट इतना था, और एक्चुअल लास्ट लास्ट में बनाते हो कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। तो फिर आपके लिए कंपैरिजन इजी होता है, जबकि हर एक कंपनी बजट कॉस्ट बना के नहीं चलती। Budget costing means you already define your budgeted, pre-defined cost for everything, for all the elements, for all the processes, for all the production things. ठीक है। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इन ये जो फंक्शन और एलिमेंट के बेसिस पे हमने डिफाइन करा है, इसके अलावा तुमने 12th में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में खास करके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ रखी है। तो कोई बताएगा क्या क्या क्लासिफिकेशन की? किसी को याद आ रहा हो तो फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? देखो, मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि तुम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, तुमने एक प्राइस डिफाइन कर दिया कि हर एक चीज का इतना प्राइस है और इतना ही प्राइस आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट में, मतलब वो यही कॉस्ट कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड में एक प्री डिफाइंड कॉस्ट आप हर एक चीज के लिए ऐड कर देते हो कि लेबर की इतनी कॉस्ट लगेगी, मटेरियल का कॉस्ट ये होगा पर यूनिट, तो वो आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। मार्जिनल में डिफरेंशिएट कर देते हो कि ये सब फिक्स कॉस्ट ये होगा, वेरिएबल कॉस्ट ये होगा, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आप जो है लेके चलोगे अपने डिसीजन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 यूनिट्स का प्रपोजल आया, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें एडिशनल लेबर कितना लग रहा है, हमें एडिशनल मटेरियल कितना यूज करना है, आप सिर्फ वही लेके चलोगे, आप वही देखोगे। आप ये नहीं कहोगे कि डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी मशीन का है वो भी ऐड कर दो इस जॉब में 1000 यूनिट्स में। तो जब आप वो ऐड नहीं कर रहे, आप सिर्फ एडिशनल वाला पार्ट ऐड कर रहे हो, तब आप मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल, ये इससे याद आ गया। इसके अलावा भी और कॉस्ट थी, याद करो। शट डाउन कॉस्ट, और कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, यस, पीरियड कॉस्ट, है ना? तो ये सारी कॉस्ट जो है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, यस, डायरेक्ट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट थी? इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही तुम पढ़ते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद आया? हाँ, इररिलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, देन
हम कहते हैं ना कि ये नॉर्मल कॉस्ट है और ये अब नॉर्मल कॉस्ट है। यस, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस कि आपका कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर क्या है, क्या आप इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, तो अगर नहीं कर सकते तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये रेलेवेंट है आपके डिसीजन के लिए तो रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट है तो इररेलेवेंट कॉस्ट। So based on different basis, you can define your cost. You can define the whole cost of your production process on these methods. ठीक है? So let's go to the PPT now. Based on the controllability, we can say that it is controllable and uncontrollable. We can also say that it is variable cost. Variable cost जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो है वेरी करेगा बेस्ड ऑन यूनिट, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। जबकि फिक्स कॉस्ट आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। देन देयर कम्स सेमी वेरिएबल बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबिलिटी, कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप स्टील की बोतल बना रहे हो, स्टील की बोतल में स्टील का जो मटेरियल लगाए उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसमें लेबर कितना लगना चाहिए, वो आपको पता है। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको नहीं पता, that there could be some indirect material which have been used in the production process, there could be some indirect labor, then based on normality, normal cost, abnormal cost, based on the investment, capital cost, revenue cost, on the basis of time period, historical cost and predetermined cost, on the basis of association with the product, कि product cost है या period cost है, and on the basis of decision making. अच्छा ये लिंक नहीं है, दिस इज अ टाइपो एरर, दिस इज सम कॉस्ट, SUN, ठीक है। तो सम कॉस्ट याद होगा तुम लोगों को, क्या होता है सम कॉस्ट? शटडाउन कॉस्ट इज नथिंग बट द पॉइंट, शटडाउन पॉइंट जिस पे आपको मतलब आपको शटडाउन कर देना चाहिए। शटडाउन इज मोर रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो लीव इट एंड डिस्कस दीस थिंग्स नाउ। कि तो बेसिकली डिसीजन लेके आपकी कौन कौन सी कॉस्ट होती है। सम कॉस्ट जो कॉस्ट इनकम हो चुकी है, जो अब चेंज नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल R&D एक्सपेंडिचर, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैगी जब लॉन्च हुई होगी तो मैगी लॉन्च करने से पहले रिसर्च हुई होगी, मार्केटिंग रिसर्च हुई होगी कि लोगों को कितना पसंद आया, तो लोगों को कितना पसंद आया है वो जानने के लिए कंपनी ने एक मार्केट सर्वे किया हो। अब पसंद आया हो या ना आया हो उससे आपका डिसीजन अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो R&D कॉस्ट आप मानते हो एज अ सम कॉस्ट कि भाई वो कॉस्ट तो चली गई, अगर नहीं पसंद आया होगा तो नहीं लॉन्च करोगे, पसंद आया होगा तो लॉन्च करोगे, तो उसको एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐड नहीं करते, because that is not related to additional production cost that has been already incurred, and that is why it is sunk cost. Then comes out of pocket cost. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हम कॉस्ट को कहते हैं जिसमें आपका कैश जो है आपकी पॉकेट से जाता है, जबकि हर एक चीज में आपका कैश जो है आपकी पॉकेट से नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी, इसमें आपकी पॉकेट से कोई कैश नहीं जा रहा होता, बट यू कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन योर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपका जो एडिशनल यूटिलाइजेशन हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी जो बिजनेस है वो अपनी बिल्डिंग में ही शुरू कर दी, आप अपना खुद का एक बिल्डिंग प्रोमाइसेस था आपका, आपने उसी में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया। तो अगर आप उसमें अपनी फैक्ट्री का जो
कॉस्ट है, जो रेंट है, वो चार्ज नहीं कर, then it means you are making a wrong decision. You are under evaluating your cost because otherwise आपका जो फैक्ट्री का premises है वो आप रेंट पे दे सकते थे. So you are losing out some opportunity to your businesses and that is why it is incurring as a opportunity cost to the business. ठीक है? Then comes imputed cost and marginal cost. Marginal cost वही variable, imputed मतलब जो by default होना चाहिए. For example, कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाया, that could be reinvested somewhere else that can give you the interest. ठीक है, जबकि आपने अगर अपने बिजनेस में लगा दिया तो आपके बिजनेस से आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप इम्प्यूटेड कॉस्ट को डिफाइन करो. देन कम्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब कि जो आपका मशीन है, अगर आप उस मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे तो मशीन को रिप्लेस करने की भी एक कॉस्ट होगी. जब हमारी पुरानी मशीन खराब हो जाती है, नई मशीन लाते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है. देन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते. तो एक तरीके से अगर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल होता है तो ये उसी कैटेगरी में आता है. ठीक है. देन कम्स डिफरेंशियल कॉस्ट. डिफरेंशियल कॉस्ट इज नथिंग बट यह पार्ट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़ा ना, कि कितना कॉस्ट बढ़ेगा अगर आप कुछ और करोगे तो, या कितना कॉस्ट घटेगा. तो डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस कितना आएगा आपकी कॉस्ट. देन कम्स रेलेवेंट कॉस्ट एंड कन्वर्जन. कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट the cost of converting your raw material to the finished good. That is called conversion cost. क्योंकि आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड के अंदर. ठीक है, इसीलिए उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं. तो अगर हम डिफाइन करें कि टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट ये 4 होते हैं, जो कि आप देख रहे हो. प्राइम कॉस्ट, जिसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब आ जाता है. सेकेंड है ऑफिस कॉस्ट, जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देते हो ऑफिस ओवरहेड एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. अच्छा सॉरी, फर्स्ट इज प्राइम, सेकेंड इज फैक्ट्री कॉस्ट. तो बेसिकली प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है तो कहलाता है फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा और वर्क कॉस्ट, ये देखो ये ना नाम है अलग, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है. तो ये कैसे आता है? ये आता है जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो. अच्छा, अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड नहीं भी ऐड करते तो फैक्ट्री ओवरहेड के दूसरे नाम क्या होंगे? जैसे ऊपर है ना फैक्ट्री कॉस्ट, वैसे ही दूसरे नाम होंगे इसके वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं. बेसिकली इट इज योर, मैं ये नाम बता रही थी कि फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं. जैसे कि इन सिमिलर मैनर फैक्ट्री ओवरहेड को आप वर्क ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हो. ठीक है, इसके अलग अलग नाम है जबकि एलिमेंट सेम है. एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. जब भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर अलग नाम से है तो यू कैन आइडेंटिफाई. देन कम्स थर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है?
ये कैलकुलेट होता है फ्रॉम द सेकेंड पार्ट, कि फैक्ट्री ओवरहेड जो दूसरा पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसी में जब आप ऐड कर देते हो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, एंड देन कम्स टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे ऐड होता है? जब आप ऑफिस कॉस्ट में या फिर टोटल ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं। तो मेनली होता क्या है, पहले वो हम देख लेते हैं। मेनली क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? तो प्रोडक्ट बना के जब आप उसको सेल करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी 3 जगह पे कॉस्ट इंकर होती है। पहली जगह होती है आपकी फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में क्या क्या होता है? उस फैक्ट्री में प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट मतलब जो कि दिख रहा है। दिख रहा है मतलब कि जो डायरेक्ट मटेरियल मुझे दिख रहा है। आप अगर स्टील की बोतल की बात करो या डस्टर की बात करो, क्लास में डस्टर डस्टर देखा होगा, तो डस्टर के आगे जो फॉर्म लगा होता है और जो उसका वुड का पार्ट है, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। उस डस्टर को बनाने के लिए, कंपाइल करने के लिए जो लेबर लगा है, दैट इज डायरेक्ट लेबर। उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, टूल्स यूटिलाइज हुए होंगे, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है, जो दिख रही है आपको कि इसमें लगा है, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है? ये चीजें फैक्ट्री में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा आपका इसी प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाता है फैक्ट्री का ही इनडायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा जैसे कि फैक्ट्री में वो जो मशीन आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो उस मशीन पे डिप्रिसिएशन लग रहा होगा, वो आपका इनडायरेक्ट फैक्ट्री का खर्चा, जो कि होता फिर भी तभी अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तब भी तो इनकर होता डिप्रिसिएशन, क्योंकि वो तो आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन लग रहा है ना। प्लस आपका फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन वही लगा रहे हो, फैक्ट्री का रेंट वही दे रहे हो, इंश्योरेंस वही पे दे रहे हो, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड। इनके बिना मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। ठीक है? ये इनकर तो होंगे ही होंगे। ऐसा थोड़ी ना है सड़क पर बैठ के आप प्रोडक्शन प्रोसेस चालू कर दोगे, फैक्ट्री का रेंट ना देना पड़े। ठीक है? बिना मशीन के आप जो है वो डस्टर का वो कटिंग कर लोगे, उसमें फॉर्म ऐड कर दोगे। ठीक है? तो ये चीज हो गई फैक्ट्री पे। तो एक जगह जहां पे खर्चा होता है मेनली, वो है आपका फैक्ट्री। फिर दूसरी जगह आ जाते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ खर्चा होता है? इसके अलावा आपका खर्चा होता है ऑफिस में। हम बात करते हैं कि भाई कोई भी अपना बिजनेस चालू करना चाहेगा, तो उसके बिजनेस में पहले एक पार्ट होगा उसका फैक्ट्री का, दूसरा पार्ट होगा उसका ऑफिस का। कि भाई ऑफिस में एडमिन रिलेटेड वर्क तो होता ही है। तो जो ऑफिस का खर्चा होता है उसको हम कहते हैं कि ऑफिस में भी ना अलग अलग वैरायटी के खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में आप स्टेशनरी यूज कर रहे हो, तो ऑफिस में जो स्टेशनरी यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मटीरियल, बट दैट इज योर इनडायरेक्ट मटीरियल। क्योंकि वो स्टेशनरी यूज कर रहे हो, रजिस्टर यूज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो कि अच्छा कितना मटेरियल गया, कितना मटेरियल बचा हुआ है, अकाउंट्स बना रहे हो लोगों के। ठीक है? आपके जो ये मटेरियल है उसके उसके अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं आपने। तो यूज तो आप मटेरियल कर रहे हो, पर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। मतलब वो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए, बट इन इनडायरेक्ट मैनर, सो एज टू हैव सम रिकॉर्डिंग पर्पस। ठीक है? देन इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस में भी लगता है। लेबर मतलब लेबर जरूरी नहीं कि फैक्ट्री वाले ही लेबर है। लेबर कैन बी योर एम्प्लॉय, कैन बी योर सुपरवाइजर,
ठीक है, सुपरवाइजर तो खैर फैक्ट्री में होता है। कैन बी योर एम्प्लॉय या मैनेजर। तो मैनेजर की जो सैलरी जा रही है वो एक तरीके से लेबर ही है। तो जो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है वो आपके ऑफिस में भी होता है। अब बिना मैनेजर मैनेजर के तो आप फैक्ट्री नहीं चला सकते ना, मतलब ऑफिस नहीं चला सकते, अपना बिजनेस नहीं चला सकते। देन कम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कि कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि जरूरी होंगे ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ऑफिस में। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऑफिस में इनकर हुए। इसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, तो तीसरी जगह जो खर्चा होता है वो तीसरी जगह का खर्चा कहाँ होता है बताओ। एनी गेस? एनी गेस वर्क की तीसरी जगह कौन सी है जहाँ पे हमारा खर्चा होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यस। तो तीसरी जगह का खर्चा होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मार्केट में जब आप सेल करने जाते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक ही जगह तो नहीं बिक जाता ना, जहाँ पे प्रोडक्शन करा वहीं पे सारा का सारा सामान नहीं बिकेगा, तो आपको भेजना पड़ेगा रिटेल्स में, होलसेल में, और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तीसरा कंपोनेंट होता है, यहाँ पे तीसरी जगह खर्चा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट मटेरियल लग सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कैसा लगेगा? जो आप पैकेजिंग करते हो, तो जो आप पैकेजिंग करते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल पार्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है। यहाँ पे भी लेबर इनडायरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो आपके जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट नहीं है, बट दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। तो जो सेल्स मैनेजर की सैलरी है, ठीक है, जो सेल्स वर्कर की सैलरी है, दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर। एंड देन ऑल्सो कम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कि भाई उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो वो सारा, ये तीनों ही पार्ट आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ टिल द पॉइंट। अब होता क्या है? होता ये है कि जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ये जो फैक्ट्री का ओवरहेड, जो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं तो हमारा आता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट यहीं पे आ जाते हैं फैक्ट्री से। तीसरा एलिमेंट आता है आपका ऑफिस से, कि ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का इनडायरेक्ट खर्चा होता है वो। तो ऑफिस का ऐड करने के बाद यू हैव योर टोटल कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है तो उसमें फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चीजें ऐड कर देते हैं, ताकि आप जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सको। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बात करता है कि प्रोडक्शन होने तक कितना खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी जो सेल्स का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, वो भी ऐड हो जाता है कि अच्छा सेल्स करवाने के लिए आपका कितना खर्चा हुआ। जबकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेल्स की बात नहीं होती कि अच्छा सेल्स के लिए कितने अलग से एफर्ट्स किए गए और वो सारे खर्चे भी ऐड कर दो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स is additional step of total cost of production. I hope it is clear now. You can ask me the question from this diagram which I have made for you. Though it is rough, but I made it comprehensive enough कि तुम्हें कुछ समझ आए. Any doubt? Okay, so let's go ahead. तो अब समझ आ गया होगा कि प्राइम कॉस्ट में सारी चीजें डायरेक्ट ऐड होती हैं। अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि प्राइम कॉस्ट के बाद ये चीजें ऐड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्राइम कॉस्ट में
डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ही आता है। फिर शुरू हो जाती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चा आपका फैक्ट्री में जो है, जो आपका ऑफिस में है और जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आप कैसे डिफाइन करते हो? आप डिफाइन करते हो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के बेसिस पे। फिर आप डिफाइन करते हो कि अच्छा इसमें डायरेक्ट लेबर कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। फिर यह आ जाता है आपका डायरेक्ट का पार्ट। जब आपने तीनों डायरेक्ट वाले ऐड कर दिए तो आपका पार्ट बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और बाकी ये सारे के सारे अगर इनडायरेक्ट ऐड कर दिए तो उसको कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब हेड के ऊपर, कि हाँ ये खर्चा तो है ही, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सिर पे इसलिए है क्योंकि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये किसका कितना पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन 2 प्रोडक्ट में आपको पता नहीं चल पाता कि ये इनडायरेक्ट खर्चा किसका कितना ज्यादा है, तो आप उसको एक प्रोपोर्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्दर इस ओवरहेड को डिफाइन करूं तो फर्दर ये ओवरहेड किस बेसिस पे डिफाइन हो सकता है कि अच्छा ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन होगा कि भाई सारे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor, indirect expense. Otherwise, these overhead can be defined की manufacturing overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. ठीक है, selling and distribution overhead it can be both, कि या तो आप इसको डिफरेंट कर दो, सेलिंग का अलग और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग। वैसे आपकी ज्यादातर बुक में दोनों एक साथ है। ठीक है, देन कम्स कॉस्ट शीट। फाइनली हम उस पॉइंट पे आए हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि अब यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं। जैसे अकाउंट्स में हम अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। फॉर एग्जांपल प्रोसेस के केस में प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इनको छोड़ के मेजरली हम कॉस्ट शीट ही बनाते हैं जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की जाती है अलग अलग बिजनेसेस में। ठीक है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, आउटपुट कॉस्टिंग में हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, देख दिखाओ ये। someone has unmuted, do you have any doubt? Okay, so let's go. So cost sheet क्या है? Cost sheet is an analytical statement of expense relating to production of an article, which informs regarding total cost, per unit cost, and quantity of production. According to Weldon, cost sheets are prepared for the use of management and consequently they must include all the essential details which will assist the manager in checking the efficiency of production. Sheetal, do you have any doubt? तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होता है? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है कि आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट ओवर, इट शुड नॉट बी ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप इनको ऐड करते हो तो यू हैव योर प्राइम कॉस्ट। तो इन ए बी सी तीनों को ऐड करने के बाद यू हैव प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, तो यू हैव ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट कह लो। अब इसमें ग्रॉस की बात की गई है तो इसका मतलब नेट आएगा कुछ एडिशन करके। तो होता यह है कि आपके पास रॉ मटेरियल होता है, तो जब आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं
और प्रोडक्शन अगर आपके किसी पॉइंट पे रुक जाता है, जिस पॉइंट पे आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो वो अगर प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो देन यू कॉल दिस एज वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टमेंट आप फैक्ट्री कॉस्ट में करते हो। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट होती है, ओपनिंग ऐड करते हो, क्लोजिंग माइनस करते हो, तो आपका आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। जब आप नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हो तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी फिनिश गुड की, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि फिनिश गुड भी आपके पिछले साल ही बिक गए हों और इस साल के इसी साल बिक जाएंगे। कुछ ओपनिंग फिनिश गुड अभी भी होंगे, कुछ पिछले साल के भी होंगे। तो फिनिश गुड की एडजस्टमेंट आप करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ओपनिंग ऐड करते हो और क्लोजिंग माइनस करते हो। जब आप ये कर लेते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, कि जो गुड्स अवेलेबल है सेल्स के लिए उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स ओपनिंग ऐड करने के बाद होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग माइनस करने के बाद आता है। फिर जब आप इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देते हो तो आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड generally you have in your question value of sales and you figure out what is the balancing figure and that is your profit margin। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी एलिमेंट में तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ बिकॉज वी विल डू सम क्वेश्चन। ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो देखो। अच्छा, इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, जैसे ऊपर अभी ये जो हमने करा ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो ये मटेरियल कंज्यूम निकालते कैसे हैं। देखो मटेरियल भी कुछ ऐसा होता होगा ना कि मटेरियल कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा है मटेरियल का, कुछ हमने परचेज किया है, और कुछ मटेरियल जो है क्लोजिंग बैलेंस बचा है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट होगी। इसका मतलब, तो इसका मतलब यू विल हैव परचेज ऑफ मटेरियल, you will add opening stock, you will add closing less closing stock of raw material, तब आता है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट में हम करते क्या है, इसकी फॉर्मेट में हम टोटल अमाउंट लिखते जाते हैं। कैसे, ठीक है, आप इसमें दो कॉलम भी बना सकते हो कि हर एक का अमाउंट यहाँ लिखा, ठीक है, और जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका अमाउंट इस वाले कॉलम में लिख दिया। अदरवाइज यू कैन मेक इन अ सिंगल कॉलम as you wish, as it is convenient to you। ठीक है, so now we will do this question। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, prepare a cost sheet for a period ended 31st March 2007। cost of material is 2 lakh, productive wages, indirect labor, carriage inward, factory expenses, office expense, legal expenses, expenses for testing of quality of goods, general manager salary, selling expenses, and profit 20% on total cost। So can you calculate the prime cost now? प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं तुम। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, एनी गेस वर्क। Any guess work? What is the prime cost? What all elements will be added to the prime cost? जैसे कि हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा,
रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्टिव वेजेस, ओके। और कुछ ऐड नहीं होगा? यस, कैरेज इनवर्ड भी ऐड होगा। कैरेज इनवर्ड क्यों ऐड होगा? तुम्हें याद होगा ना, ट्रेडिंग एंड जो हम 12th क्लास में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें परचेजेस में कैरेज इनवर्ड ऐड होता था। याद आया? Because carriage inward is part of your purchases, that is why you will add this carriage inward to the raw material. ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड भी आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ही ऐड होगा और प्रोडक्टिव वेजेस ऐड होगा, देन प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे हम? नेक्स्ट पॉइंट बताओ इनमें से। नेक्स्ट इसके बाद क्या ऐड होगा? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? नेक्स्ट इसके बाद होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट लेबर and factory expenses. So let's take answer. Cost of raw material, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट वेजेस था, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड, तो ये ऐड हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। नाउ you will add indirect labor and indirect factory, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस will also be indirect expense, तो ये ऐड करके आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट को और क्या क्या कह सकते हैं? यू कैन ऑल्सो से दिस एज वर्क कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। देन यू विल ऐड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में ऑफिस के एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एंड जनरल मैनेजर सैलरी, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम जो है ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑफिस के बाद आता है। इसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, टीसीपी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। देन वी विल ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 20% आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट योर टोटल सेल्स। ऑल क्लियर? एनी डाउट इन एनी कंटेंट कि ये वाला एलिमेंट हमने क्यों ऐड किया है यहाँ पे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, बेसिकली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं, तो कंबाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इट सेज फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। रॉ मटेरियल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिनिश गुड है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, we have some purchase of material, direct wages and work expenses, then office expenses, selling expenses, sales of finished good, मतलब सेल्स का अमाउंट है, depreciation of plant and machinery and sales of scrap। अब बताओ यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? सबसे पहले एलिमेंट हम कौन सा ऐड करेंगे? रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है हमें बेसिकली कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया है, तो रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन उसके बाद क्या ऐड करेंगे, तो नैना ने जो बेसिकली बताया है रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इससे आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें हम एडजस्ट कर देंगे हमारा डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस इज 17,000। नाउ डू यू हैव एनी डायरेक्ट एक्सपेंस you can identify here in the question? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि क्वेश्चन में गिवन हो? तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब आपके यही दोनों जो पार्ट है, ये पार्ट बन जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड बताओ क्या ऐड करोगे? फैक्ट्री में अभी कितना खर्चा हुआ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है? वर्क एक्सपेंसेस, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट ऐड कर देंगे वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद हमारा जो आइटम आएगा वो क्या क्या होगा, उसका नाम? उसका नाम होगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस yes, we will also add depreciation of plant and machinery because depreciation of plant जो है आपका फैक्ट्री में ही ऐड होता है, ठीक है। तो ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, ये आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नाम बोलेंगे इसको, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड तो वो ऑलरेडी है, वो एलिमेंट ही आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नाम देते हो, ओवरहेड नाम नहीं देते सौरभ, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी दिस पार्ट, द आंसर पार्ट। आप लोगों ने यही किया, मटेरियल कंज्यूम निकाल के प्राइम वेजेस ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। यू विल ऐड वर्क एक्सपेंसेस, यू विल ऐड डेप्रिसिएशन, तो आपका जो है ग्रॉस आ जाएगा। अच्छा, इस ग्रॉस से भी पहले आपको सेल्स ऑफ स्क्रैप इसमें माइनस करना है। सेल्स ऑफ स्क्रैप माइनस क्यों करना है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो स्क्रैप होता है वो फैक्ट्री का पार्ट होता है। तो अगर जो स्क्रैप हमारा निकला है, जो नॉर्मल हमारा वेस्टेज निकलता है, अगर उससे उसको सेल करके कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका मतलब वो हमारी फैक्ट्री के ओवरहेड को कम कर रहा है बाय दैट अमाउंट। इसलिए जो स्क्रैप कभी भी लेस करना होता है तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में ही लेस करते हैं। आफ्टर दिस एडजस्टमेंट वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमने क्या बोला था कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट यहीं पे होगी, तो ओपनिंग ऐड होती है और क्लोजिंग लेस होती है। देन यू गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आफ्टर गेटिंग नेट फैक्ट्री कॉस्ट यू ऐड ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, you will get cost of production. In cost of production you get
उसमें क्या करते हैं हम, फिनिश गुड की एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं। तो देखो दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत लॉजिकल सी चीजें हैं। रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में होगा, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट होता है, इसलिए वहां एडजस्टमेंट होगी। और जो फिनिश गुड है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडजस्ट होते हैं, जब आप ऑफिस ओवरहेड ऐड कर चुके होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ अलग नहीं था क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स है, दैट इज व्हाई आई थॉट टू इंक्लूड दिस इन लेक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, you can ask me in the next lecture tomorrow. And see you soon.